As you can see, today we shall be discussing review of related literature and some concepts related to review of related literature. As we have already discussed that the research is a process, and research starts with the first step or beginning of the process is the selection of a problem. And we must know that the sources of प्रॉब्लम सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हवा से कोई रिसर्च प्रॉब्लम नहीं आता। वैसे तो इसके कई सारे आयाम हैं जिसमें हमने बहुत सारे लेक्चर के माध्यम से डिस्कस भी किया कि ये रिसर्च प्रॉब्लम मुख्य रूप से कैसे उसके 8 स्टेप्स है और कैसे, लेकिन जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप। लेकिन हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च करते कैसे एंड द रोल ऑफ दिस लिटरेचर स्टार्ट्स। हमने कहा कि या तो फेल्ट डिफिकल्टी जिसकी मात्रा बहुत कम होती है, या फिर जो टेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, जो लिटरेचर हम लोग पढ़ते हैं, उसकी मदद से हमारे दिमाग में आइडेंटिफिकेशन होता है रिसर्च प्रॉब्लम का। सो वी कैन से द रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर is a vital source of the identification of the problem. Not only that, if we delimit the problem, then there is a role of related literature. So from research point of view, it is one of the important concept, and we have to discuss this concept very comprehensively today. As you all know, we in the beginning part of the lecture usually outline the lecture. So firstly we shall outline the lecture, then we shall discuss in part 1, that is review of related literature and its related concept. So let us outline the lecture. So you can see review of related literature. Firstly we shall be defining review of related literature. What are the parts of लिटरेचर रिव्यू? एज यू कैन सी द डेवलपिंग ऑफ ए टॉपिक, मतलब आप एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम है, तब फिर उसके इर्द गिर्द हम लोग सर्चिंग ऑफ लिटरेचर करते हैं, फिर उसको नैरो करते हैं और फिर सिंथेसाइज बाद में करते हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर. So literature review and academic research report are different, how it has been explained here. And some factors, those are to be considered during review of related literature work. You can see some guidelines to include the material in the review of related literature. It continues. फिर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, मतलब क्या क्या उनकी मुख्य बातें हैं. व्हाट इज़ द नीड एंड पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू. मैंने शुरू में भी आपको बताया कि प्रॉब्लम सिलेक्शन से लेके प्रॉब्लम लिमिटेशन एंड इवन फर्दर यू विल कम टू नो. देन व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कहाँ कहाँ से. एंड अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर सर्च, मतलब सर्च करने का तरीका. टाइप्स ऑफ लिटरेचर सर्च एंड देन टाइप्स ऑफ लिटरेचर, कहाँ कहाँ से, कितने तरह का, किस किस सोर्स से. और important steps involved in literature search. It's a very comprehensive, or it continues. And methods of literature search. Methods of literature search continues. Preparing index card and writing process of review literature, मतलब यदि हम कलेक्ट कर लिए तो हाउ वी हैव टू राइट.
we have to place. Methods of critical review, एक नाम भी है, आप देख रहे हैं, 1986 बर्शमा. एंड द लास्ट, की स्टेप्स ऑफ राइटिंग इन लिटरेचर रिव्यू. मतलब यदि हम लिटरेचर रिव्यू को राइट डाउन कर रहे हैं तो फिर क्या क्या स्टेप्स हमको ध्यान में रखेंगे. एज यू कैन सी 5 स्टेप्स. बहुत सारी चीज़ें आपको रिपीट लग रही होगी. when we will discuss, you will come to know there are some common points in different subheads, but they all are distinct and different. So this is the outline. Now let us start the first part of the lecture, that is review of related literature and related concepts. So firstly, in this part of lecture, that we can say the first one, we shall be defining review of related literature, and we will also discuss certain points as you have seen in this part. So review of related literature is a collection of work done by earlier researcher published in the form of books or articles. So review of related literature is a collection of work done by earlier research published in the form of books or articles. earlier researcher ने जो भी काम किया है उसको हम लोग जब कलेक्ट करते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं. So the process of collection is the review of related literature. A literature review is an overview of the previously published work on a specific topic. जैसे मान लीजिए कि आपको एंजाइटी पे काम करना है, या यदि आप चले जाइए दूसरे क्वालिटेटिव रिसर्च में, तो मान लीजिए आपको गांधी पे ही काम करना है, तो किन लोगों ने क्या काम किया है, उनके शैक्षिक एस्पेक्ट पे क्या कहा है, मेथड्स के बारे में उनका कोई ओपिनियन है तो लोगों ने रिसर्च करके क्या किया. सो दिस लिटरेचर रिव्यू ओवरव्यू ऑफ द प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक. तो आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उस पर बात. The term can refer to a full scholarly paper or a section of a scholarly work such as book or an article. जहाँ से भी आप लिटरेचर ले, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, comprehensive हो सकता है, और even you can also take some review from an abstract and also from the comprehensive research paper as well. A literature review is a piece of academic writing demonstrating knowledge and understanding of the academic literature on a specific topic placed in context. So जिस context में व्यक्ति काम कर रहा है उस context से related literature को सर्च करना academic writing के लिए, it is a type of review of related literature. A literature review is also includes a critical evaluation of the material. जैसे कोई आदमी कोई आर्टिकल लिखता है, खास के जहाँ क्रिटिकल एस्पेक्ट की ज़रूरत है, मुख्य रूप से जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, तो वो अपनी बातों के क्रम में बहुत सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज करता है, इवेलुएट करता है, जस्टिफाई करता है, इशारा उसी तरफ है. सो क्रिटिकल इवेलुएशन ऑफ द मटेरियल, तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान भी वर्धन होगा और साथ साथ आपको लिटरेचर भी से कलेक्ट होगा. सो दिस इज व्हाई इट इज़ कॉल्ड ए लिटरेचर रिव्यू रादर देन ए लिटरेचर रिपोर्ट. सो इट्स नॉट ए लिटरेचर रिपोर्ट. एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन लिटरेचर रिपोर्ट एंड देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन लिटरेचर रिव्यू. सो रिव्यू में आप क्रिटिकल करते हैं, जस्ट यू आर नॉट रिपोर्टिंग, जस्ट यू आर नॉट पुटिंग योर फाइंडिंग्स ओनली, बट you are justifying the finding, you are evaluating the finding, you are comparing the findings with other similar concepts and like that. So a literature review also includes a critical evaluation of the material. This is why it is called a literature review rather than a literature report. तो इतनी सारी बातों के साथ हमने यह जाना कि वह साहित्य, जिस साहित्य की मदद से हम चीज़ों का, जिस विषय पे हम काम करते हैं, ज़्यादा और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, तो ये लिटरेचर रिव्यू है.
मान लीजिए कि कोई किताब हम पढ़ते हैं, फिर उसी टॉपिक पे कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, फिर दूसरी किताब पढ़ते हैं, फिर तीसरी पढ़ते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें हम क्या कर रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं। और लिटरेचर रिव्यू में हम रिपोर्ट सिर्फ नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, मान लीजिए क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो हम क्या करते हैं, अच्छा मेथड कौन सा लगाया, सैम्पलिंग टेक्निक कौन है, ये टूल का डिस्क्रिप्शन क्या क्या है, और फिर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट कितने तरह का है, आदि आदि। तो एक तो आपको नॉलेज मिलता है, दूसरी बात कि आपको ये भी पता चलता है कि किस तरह से कैसे काम किया गया है। और उसमें यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने भाई मिस्टेक किया, बहुत सारी रिव्यू में आपको ये भी लगेगा। सो दिस इज द पर्पस ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। In this part itself, we shall talk about the four parts of process, four parts of literature review process। मतलब लिटरेचर रिव्यू के 4 पार्ट्स के कैसे करते हैं। पहला काम जो हम करते हैं, डेवलपिंग ए टॉपिक, मतलब हम अपना एरिया, जैसे हमने कहा कि रिसर्च प्रॉब्लम, तो रिसर्च प्रॉब्लम का टॉपिक एरिया हम लोग डिसाइड करते हैं। फिर सर्चिंग, मतलब उससे संबंधित, चूँकि हमारा प्रॉब्लम हो गया, सेंट्रल आइडिया हो गया, सेंट्रल रिसर्च इशू, रिसर्च प्रॉब्लम हो गया, अब उसके इर्द गिर्द हम खोजते हैं। मान लीजिए कि हमारा रिलेटेड वेरिएबल भी डिसाइड हो गया है तो उससे रिलेटेड, तो पहला स्टेप है कि डेवलपिंग ए टॉपिक, मतलब ये है कि काट छांट के आप अपने प्रॉब्लम को सही कर देते हैं। द सेकेंड स्टेप इज सर्चिंग द लिटरेचर, आप उससे संबंधित स्पेसिफिक, क्योंकि सिर्फ एक कंसेप्ट यदि डालेंगे सेंटर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप उसके रिलेटेड वेरिएबल्स को भी डाल दें जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली यू आर डूइंग सर्चिंग द लिटरेचर विच इज़ वेरी मच रिलेटेड टू योर टॉपिक। सो टॉपिक के सिलेक्शन के बाद स्पेसिफिक होकर उसी चीज़ को हम सेलेक्ट करते हैं, एंड उसके बाद नैरोइंग द स्कोप, फर्दर नैरो करते हैं, मतलब पहले प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम को काटते छाटते हैं, और फिर अल्टीमेटली हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये चीज़ हमको करना है। और उसमें आप सभी जानते हैं कि रिसर्च का जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का भी जस्टिफिकेशन है, उसमें भी आइडेंटिफिकेशन है, उसमें भी हम लोग रिसर्च गैप की बात करते हैं, और तो फिर धीरे धीरे उसकी मदद से हम लोग नैरोइंग द स्कोप ऑफ सर्चिंग, कि अब ये सब हमको नहीं खोजना है, इतना ही खोजना है। एंड नाउ जब हम सब लिटरेचर सर्च कर लेते हैं, नैरो कर लेते हैं उसके स्कोप को, तो सिंथेसाइज करते हैं कि प्रायर रिसर्च से, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट पे हो। जैसे रिव्यू अपने आप में बहुत व्यापक कंसेप्ट है। मान लीजिए कि आपको टॉपिक हो गया, फिर हो गया कि कैसे काम करना है, किस मेथड से काम करना है, कौन कौन से स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट लेने हैं, डाटा का एनालिसिस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें, और इन सारी चीज़ों का ज्ञान अल्टीमेटली आपको होता रहता है किससे, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर से। सो यू आर सिंथेसाइजिंग द प्रायर रिसर्च, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, ये नहीं छूटा है, ये इन्होंने नहीं किया है, या फिर इसको ऐसे किया जा सकता है। सो यू आर सिंथेसाइजिंग एंड अल्टीमेटली योर प्रॉब्लम इज ओके एंड योर एरिया इज स्पेसिफाइड, द पर्टिकुलर प्रॉब्लम on which you have to work is decided. There is a concept, literature review and academic research report, यहाँ हमने लिखा है। तो डिफरेंस है दोनों में। एक तो हमने कहा कि रिपोर्ट में तो सीधे रिपोर्ट कर देना है, उसमें रिसर्चर का अपना कुछ नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट करना है, ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। लेकिन जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो जस्टिफिकेशन वगैरह भी उसमें डालते हैं, दूसरी की स्टडी को भी कोट करते हैं, और फिर उसकी मदद से रिसर्च फाइंडिंग्स को और बाकी रिलेटेड कंसेप्ट को भी एनालाइज करते हैं, इवेलुएट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। सो इन रिसर्च रिपोर्ट द रिसर्चर यूजेस द लिटरेचर एज ए बेसिक फाउंडेशन एंड सपोर्ट फॉर newer ideas and insights into the research topic of interest, मतलब उससे आप आइडिया लेते हैं, चूंकि रिसर्च रिपोर्ट है किसी का। लिटरेचर रिव्यू समराइजेज एंड सिंथेसाइजेज द आर्गुमेंट्स एंड लिटरेचर एंड रिसर्च फाइंडिंग्स गैदर्ड फ्रॉम सच ए रिव्यू टू पुट फॉरवर्ड आर्गुमेंट्स इन फेवर और अगेंस्ट द पर्टिकुलर टॉपिक एंड इट्स फाइंडिंग्स। तो एक तो इसका जो पर्पस है, हमने शुरू में भी बताया, जहाँ यहाँ हमने बात की थी, तो लिटरेचर रिव्यू
का जो एरिया है, जो पर्पस है, जो वर्क है, इट इज़ मोर एक्सटेंडेड इन कंपेरिजन टू द प्रेजेंटेशन ऑफ और एकेडमिक रिसर्च रिपोर्ट। तो एकेडमिक रिसर्च रिपोर्ट को लिखना और रिलेटेड लिटरेचर ऑफ रिव्यू इज़ डिफरेंट बिकॉज द लिटरेचर रिव्यू इज़ कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें बहुत इसका स्कोप थोड़ा लंबा है। तो एक तो हमने ये देखा, हम लोग 5 फैक्टर्स की भी बात कर लेंगे इसी एस्पेक्ट में कि देर आर 5 फैक्टर्स दैट वी हैव टू कंसीडर ड्यूरिंग रिव्यू वर्क। मतलब जब हम रिव्यू वर्क कर रहे हैं तो हमको 5 फैक्टर्स देखने हैं, और वो 5 फैक्टर्स कौन कौन है? 5C 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 को ध्यान में रखना है। C मतलब पहला C आपका साइट, दूसरा C कंपेयर, तीसरा कंट्रास्ट, चौथा क्रिटिक, और पांचवा कनेक्ट। मतलब हम कोई भी रिव्यू यदि करते हैं तो सबसे पहले साइट कहाँ कैसे है, फिर कंपेयर, कई तरह का आपने लिया, तो जो लिटरेचर रिव्यू है उनके आपस में कंपेयर, इन्होंने ये किया है, उन्होंने यो किया है, बीच का एक कंट्रास्ट, और फिर क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मतलब क्या सही है, क्या वो है, इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, ये एस्पेक्ट, स्ट्रेंथ, लिमिटेशंस, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ योर वर्क, एंड एट द एंड सबको आप मिला के कनेक्ट कीजिए। सो दीज आर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डूइंग रिव्यू वर्क। मतलब आप जब रिव्यू वर्क करते हैं तो साइट मतलब कहाँ है, क्या है, कंपेयर यदि एक से ज़्यादा है, कंट्रास्ट ऑब्वियस है एक से ज़्यादा है, और फिर क्रिटिसाइज करिए। कंपेयर के बाद क्रिटिसाइज, और फिर कनेक्ट करिए कि कहाँ कहाँ मिलती जुलती बातें हैं, कहाँ डिफरेंस है और क्यों डिफरेंस है, आपको क्या करना है, इसका इंसाइट आपको मिलेगा। सो इन दिस पार्ट वी हैव tried to define the review of related literature as a concept. Then we have come to know the difference between the literature report and literature review. Then we have 5C and different parts of literature review जो वहाँ हमने आपको बताया था। तो जब भी हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो क्या होता है, जब नए रिसर्चर हैं, उस फील्ड का सिर्फ बेसिक हमको नॉलेज है, तो हम एक्सप्लोर करते हैं, और एक्सप्लोर करने के क्रम में क्या होता है कि बहुत सारा ज्ञान आता चला जाता है, ट्रिक्स है, टेक्निक्स है, टूल्स है, डाटा एनालिसिस का तरीका है, ये सब भी आपको रिव्यू से मिलता चला जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट this part of lecture in which we have discussed 5C in order to understand the factors that to be considered during the review of related literature. Then we differentiated the literature review and research report, and we came to know that the research report is very limited, whereas the scope of literature review is more comprehensive and extended. And as you have discussed, पार्ट्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू, जिसमें टॉपिक को डेवलप करना, फिर लिटरेचर सर्च करना, फिर उसको नैरो डाउन करना, और अंत में सब जितना भी आपने कलेक्ट किया उसको सिंथेसाइज करके किसी डिसीजन पे पहुंचना। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर वेयर वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंशिएटेड पार्ट्स हैव बीन डिस्कस्ड एंड 5C we have discussed. So this is all about. Thank you.